Yali Madad and good afternoon, everyone. My name is Sumaila Virani and I will be the moderator for today's webinar. I would like to welcome you all to the Aga Khan Education Board Uganda webinar series, Parenting Matters. And the topic for today's webinar is teenagers. This is our 7th webinar from the series of 8 webinars. We have one last webinar to go, that is next Sunday after today's webinar, so please mark your calendar and make sure to attend. Last Sunday, we had a webinar on the topic pre-teens. We discussed about parenting tips on growing and learning of a preteen, and also the very important topic, how to deal with bullying and the importance of child's self-esteem. Those of you who couldn't attend the webinar any of the previous weeks, if interested, can send us an email so that we can send you the link for the webinar. Also, the link for the last week's webinar will be posted in the chat section. Before I introduce our speaker, I would like to inform you all that there will be question and answer round at the end of the webinar. Meanwhile, if you have any questions, feel free to write them down in the question and answer box. Please write your questions briefly, and before writing any questions, go through the list of the questions asked by the other attendees so that you don't repeat your question. And if your question is already in the list, you can just put a vote or like for that question. After the webinar, evaluation link will be posted. Kindly take a minute to fill it. Also, you can ask your questions in the evaluation form. Now, let me introduce the speaker. Our speaker for today is Anila Altaf Mukhi. She is an educationist, professional consultant in early childhood development, motivational speaker, and parenting counselor for more than 2 decades. As a consultant, she has served in countries like Pakistan, Tanzania, Uganda, and Egypt through various international NGOs, community-based organizations, universities, and Ministry of Education. Her areas of expertise are program development, training, advocacy, governance, curriculum development, and research. Please welcome Anila Altaf Mukhi. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम श्योर आप सब ठीक होंगे। आपके साथ हर बार इस तरह संडे को मिलते हैं, हर बार एक नया एरिया हम डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। ये जर्नी आहिस्ता आहिस्ता हमने शुरू किया था फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेरेंट्स टू बी व्हेन द चाइल्ड इज इन द वूम। वहां से हमने शुरू किया, इन्फेंट तक आए, फिर टॉडलर, फिर प्री स्कूलर, एंड देन द चाइल्ड गोज इनटू द कैटेगरी ऑफ ग्रेड स्कूलर। वहां से हमने बात की प्री टीन्स, और आज देखो बच्चा इतना बड़ा हो गया कि हम टीन पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं। जरा भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप हमेशा से ये देखा जाता है कि टीनेजर्स की पेरेंटिंग की जब बात होती है तो पेरेंट्स आर रियली एंग्शियस अबाउट इट कि हम कैसे करेंगे, और ये एरिया जरा डिफिकल्ट होता है। लेकिन एक बात आपको मैं करना चाहूंगी बिफोर वी मूव ऑन, कि जब टर्बुलेंस होता है ना, हम लोग जब एयरक्राफ्ट में होते हैं और हम अपने जर्नी पे होते हैं और अचानक से टर्बुलेंस स्टार्ट होता है, तो पायलट छोड़ के नहीं चला जाता, वो उसको स्टीयर करता है until the time कि वो सारे पैसेंजर्स को सेफली लैंडिंग तक लेके जाता है। इसी तरह से जब टीनेज में बच्चा आता है, वो एक टर्बुलेंट टाइम है उसकी लाइफ में, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उसकी बॉडी में बहुत चेंजेस हो रही होती है, प्यूबर्टी का टाइम होता है, सोशल इमोशनली चाइल्ड इज रियली वल्नरेबल इन दिस टाइम, दिस एज कैटेगरी। ऐसे में तो पेरेंट्स का और ज्यादा सपोर्ट होना चाहिए। ऐसे में तो पेरेंट्स को बच्चों को अकेला ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए कि बस अपनी जिंदगी है, तुम खुद ही डिसाइड करो, अब तुम बड़े हो गए हो। That is not right. I think that is the time when our parenting needs a different type of, हम लोग गेयर बदलते हैं ना गाड़ी में, तो डिफरेंट तरीके से पेरेंटिंग करनी होती है, और उन तमाम इश्यूज को जो बच्चा फेस कर रहा होता है, पेरेंट्स उसको बहुत ध्यान से, बहुत केयर के साथ आगे की तरफ हम लेके जाते हैं। एक और बात आपसे करना चाहूंगी, जब हम लोग ड्राइविंग सीखते हैं ना, ड्राइविंग क्लासेस में जाते हैं, बिफोर वी ऑब्टेन आवर ड्राइविंग लाइसेंस देयर इज अ होल प्रोसेस इन्वॉल्व,
हमारे पास एक लर्निंग लाइसेंस होता है, और हमारे साथ एक हमारे नेक्स्ट सीट पे एक हमारा गाइड होता है जो हमें गाइड करता है कैसे हमको कार चलाना है, कैसे हमको आगे बढ़ना है, कौन सी जगह पे स्लो करना है, कौन सी जगह पे फास्ट लेके जाना है, और कैसे हमको इस पूरे जर्नी के अंदर वो पूरी तरह से गाइड की तरह एक बैठा होता है जो हमें एक्सपर्टीज देता है। उसकी प्रेजेंस की वजह से हम अपनी इस इंडिपेंडेंस को आहिस्ता आहिस्ता नेविगेट करते हैं। हमें एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हमारा गाइड हमारे साथ है। इसी तरह से जब बच्चा 13 to 19 में आता है तो वो भी एक्सपेक्ट करता है कि हमारे साथ हमारा गाइड हो, ऑल्दो ही वोंट टेल यू, शायद वो कहेगा नहीं, उसको अपनी इंडिपेंडेंस में वो बहुत ज्यादा इस वक्त मशगूल है, मसरूफ है, लेकिन आपको पेशेंस के साथ उसके गाइड की तरीके से कार की नेक्स्ट सीट पे उसके साथ ही बैठना है इन टर्म्स ऑफ एंटायर जर्नी ऑफ टीन पेरेंटिंग। और कैसे करना है, कौन से एरियाज को फोकस में रखना है, कौन से एरियाज पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, कौन से एरियाज में हमें ऐसा है कि केयरफुल पेरेंटिंग की जरूरत है। आज हम इन तमाम बातों से आपके साथ डिस्कशन करेंगे, और आपके पास जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वहां पर भी आप अपने क्वेश्चंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एक आपको मैं एक्टिविटी भी देती हूँ, आपके पास अगर कोई एक्सेलेंट एग्जाम्पल है आपकी टीन पेरेंटिंग की, कोई टिप्स है, इफ यू वांट टू शेयर विद द एंटायर ऑडियंस, please put it down in the chat section and Shumaila may read it towards the end of the session। जो हम लोग एंड करेंगे वहां पे बेस्ट टिप्स को भी शुमाइला रीड करेंगी और दूसरे सारे पेरेंट्स के साथ हम शेयर करेंगे कि आप अपनी टीन पेरेंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। हमारी ये स्लाइड आपके साथ हम हमेशा शेयर करते हैं, पेरेंटिंग मैटर्स 8 एपिसोड का ये जर्नी था। 7th एपिसोड पे आज हम पहुंच गए, टीनेजर्स पेरेंटिंग का टाइम है, और जस्ट एक लास्ट एपिसोड हमारा रह गया है जो हम नेक्स्ट संडे आपसे बात करेंगे, दैट इज रिगार्डिंग एडल्ट लाइफ, यंग एडल्ट until the age of 25 and beyond। So आज हमारा जो फोकस है वो है 13 to 19, ओके, या 13 to आप 20 भी कह सकते हैं। तो लेट्स सी, हमारा नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास आज का पोस्टर रेडी है टीनेजर्स लाइफ के हवाले से। आपको पता है ये एरिया थोड़ा चैलेंजिंग है, बट we are going to make it simple. We are going to give you lots and lots of tips and strategies. As always, there are lots of tips and strategies, and you are going to use, if one doesn't work, the other one will work. Okay, so don't worry, take a deep breath. It's a journey, we are together. Okay, we are together in this journey, so don't worry, but take your teen parenting seriously. That's my request. Take your teen parenting seriously. Teenagers are going through a lot, and today we are going to learn what they are going through. So our next slide, we can see the age category here. All these teens are waiting to welcome you, 13 years to 19 years of age group, and we are going to discuss about their life today. As usual, we are going to share with you what do we have in today's webinar. There are 5 sections. As usual, we are going to start with growing and learning. We are going to see कैसे teenager grow कर रहा है, क्या challenges उसकी life में होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हाई स्कूल लाइफ। हाई स्कूल लाइफ के क्या challenges है, क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए जब इतनी टर्बुलेंस आ रही है, ऑलरेडी प्लेन इज शेकिंग एंड देन टर्बुलेंस इज बीइंग फेल्ट। So, ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि वो टीनेजर को आराम से उस जर्नी के से आगे तक लेके जाए। बॉडी इमेज एंड सेल्फ एस्टीम का बहुत ज्यादा इशू है इस एज ग्रुप में, बच्चों को ये इशू बहुत अफेक्ट करता है, बॉडी इमेज एंड सेल्फ एस्टीम। आज उस पर बात करते हैं। सोशल प्रेशर्स कौन से होते हैं, इतने सारे सोशल प्रेशर्स शायद हम लोग एडल्ट्स की लाइफ में भी नहीं होते जितने के टीनेजर्स की लाइफ में होते हैं। तो लेट्स बी सिंपैथेटिक एंड वी एम्पैथाइज विद देम एंड वी मूव आवर पेरेंटिंग अकॉर्डिंगली। Okay, and then the last section that we will be discussing today is about mental health issues in the teens, and then the stress management tips. So with this content, see, we only have 1 hour, and then we want to discuss so much with you, and these are all important areas.
So I'm sure you're going to bear with us, and if 5 minutes up and down हो जाता है तो आप please patient रहना और हम लोग आगे इसको move करते हैं. सबसे पहले एक inspiration. इंस्पिरेशन में हम डिस्कस करते हैं कोई भी ऐसी बात, कोई ऐसी सेइंग जिससे हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ इंस्पिरेशन मिलता है, कुछ हमारी लाइफ में मोटिवेशन बन के ये चीज आती है. तो आज हम बात करते हैं टीनेजर्स की पेरेंटिंग के टाइम के हवाले से, और हम आपके साथ एक एक्रोनिम शेयर करते हैं. ये एक स्टेज है लाइफ का, और उस लाइफ के स्टेज में बच्चा अकेला नहीं है, पेरेंट्स इसके साथ है. चलिए हम देखते हैं. स्टेज स्टैंड्स फॉर व्हाट? S stands for significance of parents. Parents are important. As I have told you earlier, teenage में भी parents are extremely important. Extremely important. So don't say that child is now grown up, I don't want to spend my time with him or her anymore. He is on his own or she is on her own and she is managing her life well. No, they are not managing their life well. They need you. Second point, stage ka T. S says significance of parents, stage ka T. T is two-way communication. ये याद रखना है. पेरेंटिंग में two-way communication बहुत important है. सुनना है, एब्जॉर्ब करना है, लिसन पेशेंटली, उसको बहुत इंपॉर्टेंस देना है और सुनते रहना है, और फिर उसके बाद उसको आहिस्ता से डिफरेंट तरीके से समझाना है. टू वे कम्युनिकेशन, स्टेज का टी. टीनेज एक स्टेज है और ये स्टेज का टी. ए स्टैंड्स फॉर अथॉरिटी. पेरेंट इज एन अथॉरिटी इन चाइल्ड्स लाइफ. अथॉरिटी कैसा? अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग. रिमेंबर लास्ट टाइम हमने प्री टीन में अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग की बात की थी. Don't have to be an authoritarian parent anymore. You have to be an authoritative parent. Just have a look at last time's pre-teens webinar recording and you will get to know what are different parenting styles and what type of parenting is most suitable for teenage parenting. So A stands for authority, combination of care, concern and structure. Structure होना चाहिए, timetable होना चाहिए, expectations उसका clear पता होना चाहिए. At the same time care भी होना चाहिए, concern भी होना चाहिए. Care का मतलब वो बच्चा क्या, what is he going through, एक feeling of empathy, उसके साथ एक connection build करना है, उसका ख्याल रखना है. आज हम बात करेंगे कैसे. G, stage का G. G stands for generation gap should not be a hurdle in parenting. बहुत सारे parents कहते हैं generation gap, हमारे बच्चे बिल्कुल नई generation के हैं, they want to do things their own way. All right, we have a generation gap, but it should not be a hurdle in our way of parenting, and we should try not to judge the teenagers just by saying they are for different generation, they do things differently, and we try to put all the labels on teenagers. You are like that, you this and that and this and that, which is not right. Let's not judge them, because today we are going to see what they go through, and then it is going to be an eye opener for us. The third and the last thing, stage ka E, emotion. Understand that emotions are harder in teenage years because of what's happening in the brain. जो ब्रेन में इस वक्त चल रहा है ना, आज आपको मैं ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी, शायद आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, या शायद आपको पहले से पता होगा. इट्स गोइंग टू बी अ रीइंफोर्समेंट. इमोशंस का इस वक्त जो एक तूफान आया हुआ है, स्टॉर्म है दिमाग के अंदर, उसको हैंडल करना टीन के लिए ऑलरेडी चैलेंजिंग. ऐसे में अगर पेरेंट जो है वो जजमेंट करता है and they start to judge the child, you are bad, or you have done this, and all those criticism, that is not right. Okay, so it's a stage, as we have discussed, it's a difficult stage, but we still have to be with the child. And then we are going to now talk about the growing and learning process. Okay, now I'm going to ask you a question. Have you noticed that sometimes your child's thinking and behavior seems quite mature, but at the other time your child seems to behave or think in illogical, impulsive and emotional way? Sometimes बिल्कुल maturely बात करता है teenager, बहुत सारे decision making में participate कर रहा होता है, and then other time this child becomes so moody and illogical or anger, impulsive,
different types of emotions are overcoming him. So, and it overwhelms him as well. So that's when we have to understand that this is the time of teenage and that is natural. This happens, okay? Another thing that we have to keep in mind in terms of growing and learning, back to front development of the brain explains this shifts and changes. Brain पूरा develop, हम अब तक हम ये कहते थे ना कि 6 to 8 years तक pre in the womb से लेके 6 to 8 years तक 95% brain develop हो जाता है, ठीक है? But in the teen age there is still remodeling inside the brain of the child. So that is when emotions are at the peak. Child is not able to contain them. Child is not able to understand it कि क्यों मुझे ये ऐसा सब हो रहा है. So ये चीज याद रखने कि अभी इसके ब्रेन डेवलपमेंट का एक नया फेज है. रीमॉडलिंग हो रही है, प्रूनिंग हो रही है. जो जो कनेक्शंस काम के नहीं है वो निकल जाएंगे. जैसे अगर टीन एज में सारा टाइम बच्चा वीडियो गेम पे होगा तो मींस ब्रेन इज रजिस्टरिंग द फैक्ट दैट ओनली वीडियो गेम skills are needed for this child and those are the only things which are going to remain. Piano, all the other activities, सारी चीजें prune off हो जाएगी क्योंकि यहाँ रीमॉडलिंग हो रही है. एडल्ट लाइफ के लिए बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है. So that is important that we have to understand this, okay? After this, we see this diagram, an image here. Neocortex not fully developed. ये जो डेवलपमेंट का पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है, नियोकॉर्टेक्स, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज, प्लानिंग. आप कहते हैं ना समटाइम्स टीनेजर्स आर नॉट एबल टू प्लान प्रॉपर्ली, समटाइम्स their executive functions are not developed properly, sometimes they don't show empathy towards others. Why? Because neocortex of the brain is not yet developed, still developing. Next point, relies on more reactive gut instinct part of the brain. That is the, ये जो आपका ब्रेन का पार्ट है ना, एमिगडाला, वहां से वो सारे रिएक्शंस उसके हो रहे, रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, सोच ठीक से नहीं कर पा रहे, रिएक्ट ज्यादा करता है क्योंकि नियोकॉर्टेक्स अभी डेवलप प्रॉपर हुआ नहीं है और एमिगडाला से सारे डिसीजन मेकिंग हो रहा है, which is very much reactive in nature. Emotions and memories associated with emotions, okay? Not good at reading emotions on other people's face. ये भी एक characteristic है. Agar somebody is concerned or somebody is worried, a teenager will say, "You look angry," and it's very common. अगर आप concerned भी होंगे या अगर आप बात भी कर रहे होंगे ना very stern way में, तो आपका टीनेजर कहेगा आप गुस्से में हो क्योंकि आपका जो इमोशन है ना उसने ठीक से रीड नहीं किया क्योंकि इसका ब्रेन का ये दो पार्ट जो मैंने आपसे डिस्कस किया अभी वो प्रॉपर्ली डेवलप हो रहा है. ये सारी बातें हमको याद रखनी है टीनेज ब्रेन के हवाले से. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि टीनेज में क्या चल रहा है. दिस इज द टाइम ऑफ चेंज फॉर हाउ टीनेजर्स थिंक, फील. यू सी, चेंजेस का टाइम होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे इसको मैनेज करना. दिस इज द टाइम ऑफ चेंजेस फॉर हाउ टीनेजर्स थिंक, फील एंड इंटरेक्ट विद अदर्स एंड हाउ देयर बॉडीज आर ग्रोइंग. नेक्स्ट पॉइंट है, most girls will be physically mature by now and most have completed puberty. Girls are maturing faster in teenage as compared to boys. Boys might still be maturing physically during this time. Boys की physical development अभी भी चल रही है 19-20 तक, ठीक है? फिर eating disorders are very common. Eating disorders में ये तो बहुत बड़ा एक segment है, इस पे हम detail में बात करेंगे next segment के अंदर. That's why I'm leaving this point at this point here. We are going to discuss it further. कितने dangerous हो सकते हैं ये disorder और इसके साथ कितने सारे health problems हो सकते हैं बच्चे को. During this time, your teen is developing his unique personality and opinion. Personality इसकी बन रही है, opinions बन रही है, दुनिया को एक नए तरीके से देखता है, उसकी paradigm shift उसका हो रहा है, वो किस तरह से पहले सोचता था और अब वो कैसे सोचता है दुनिया के बारे में. तो ये सारी बातें हैं आपको याद रखनी है. Relationship with friends are still important.
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है अपने फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। और उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टाइम टू प्रिपेयर फॉर मोर इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितना ज्यादा ये रिस्पॉन्सिबल बनता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, कम्युनिटी की तरफ से कोई इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स में इसको कुछ काम मिलता है, कहीं एनजीओज में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, ये सारे पॉजिटिव चीजें हैं। जितना उसको आप इंडिपेंडेंट फील कराते हो, वो नेगेटिव डायरेक्शन से ऑल द एनर्जी शिफ्ट्स इनटू द पॉजिटिव डायरेक्शन। यही होता है ना, हम लोग कहते हैं कितना नेगेटिव डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है, हर नेगेटिव चीजें टीनेजर्स कर रहे होते हैं, बिकॉज उनको गाइडेंस डायरेक्शंस की जरूरत है। अगर हम उनकी एनर्जी को खाली शिफ्ट कर देना पॉजिटिव डायरेक्शन में, मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स विल बी सॉर्टेड। अब देखते हैं इमोशनल एंड सोशल चेंजेस टीनेजर्स में क्या क्या हो रहे हैं। वेरी क्विकली वी आर गोइंग टू सी, वी आर स्टिल ऑन द सेक्शन ऑफ ग्रोइंग एंड लर्निंग। They show more independence from parents and that's very true. हर चीज में जैसे कि हम खुद ही कर लेंगे, हम अकेले जाएंगे, हम अकेले ट्रांसपोर्टेशन में चले जाएंगे यूनिवर्सिटी कॉलेज या स्कूल, आप हमारे साथ नहीं आओ, you know, and have a deeper capacity for caring and sharing and for developing more intimate relationship. अभी उसके intimate relationships भी बढ़ते जाते हैं क्योंकि now it's time for puberty, ठीक है। तो यहाँ पे वो रिस्की बिहेवियर में ना चला जाए, अनहेल्दी लाइफस्टाइल में ना चला जाए, अनहेल्दी एक्शंस में ना चला जाए, यहाँ पे पेरेंट्स का रोल आता है, ठीक है। वो कैसे करना वो हम बताएंगे, आपसे बात करेंगे। Child spends less time with parents and more time with friends and he or she feels lot of sadness or depression. बहुत उसको sadness and depression इस वक्त फील हो रहा है और ये मेंटल हेल्थ इश्यूज का बहुत पीक टाइम है। यहाँ पे उसका इसका इतना ज्यादा केयर, कम्युनिकेशन और इतनी सारी आज की, तो आज बहुत टिप्स है आपके पास। अगर if you are a parent of a teenager, keep noting this down because it's going to definitely help you. There are lots and lots of tips today and please let's understand that we make our parenting effective. That is the reason child goes into the problems of alcohol and drug use and unsafe sex and all the other problems, which we as a parent need to play a part, and we need to make sure that we keep our teenagers safe. Thinking and learning की category, we are still on growing and learning. We talked about emotional and social changes. Now we are talking about intellectual process. Learns, ये लर्निंग इसकी जो है वो बहुत ज्यादा डिफाइन हो गई है। एंड देन नाउ चाइल्ड शोज मोर कंसर्न अबाउट फ्यूचर स्कूल एंड वर्क प्लान्स, क्या क्या उसको करना है लाइफ में। Child talks about, you know, the careers and everything, although it's not very defined, but still child talks about career because it's more concerned about it now. And the next thing is teenager be better able to give reasons for his own choices. Okay, जो वो दिमाग से चॉइस लेता है उसको वो एक्सप्लेन करता है, गिव्स रीजन। आप देख रहे हैं ऑल दी स्टेजेस ऑफ पेरेंटिंग में, इन्फेंसी, टॉडलरहुड, ऑल द ब्रेन वाज डेवलपिंग एंड अब इसकी रीजनिंग इतनी अच्छी डेवलप हो गई कि वो जिसके हर एक्शन का रीजन दे सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जनरल पेरेंटिंग टिप्स। There are 10, okay, 10 general parenting tips, positive parenting tips for teenage years. Let's understand these are general. We will go into specifics in the next section. जैसे हाई स्कूल में क्या टिप्स होनी चाहिए, फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या टिप्स होनी चाहिए, इस तरह से हम अपने सोशल प्रेशर में क्या टिप्स होनी चाहिए। बट ये एक जनरल है, एंटायरिटी में एज पेरेंट्स क्या हमारा काम है, हमें अपने टीनेज बॉय को या टीनेज गर्ल को कैसी पेरेंटिंग देनी है। पहला पॉइंट, टॉक 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 टॉक, सिट एंड टॉक लाइक अ फ्रेंड। उससे सारी बातें उसको अटेंशन दो। उसका कोई चेंज ऑफ बिहेवियर है, थोड़ा सा सैड है, थोड़ा डिप्रेस है, आपको पता चल जाएगा इफ यू आर पेइंग अटेंशन। अभी मैंने आपसे शुरू में बात की, एक ऐसा एरोप्लेन जिसका जो पायलट है ना वो बिल्कुल अलर्ट है बिकॉज टर्बुलेंस का टाइम है, ठीक है। द conditions are turbulent and that's why the captain or the pilot is very alert because he wants to land the plane safely. Similarly, as parents of a teenager,
we have to be alert and careful. Okay, pay attention. What are the things that the child is telling you through the action, through the words, through the thoughts? When the टीवी में कुछ आ रहा है, उसको देखकर उसके एक्सप्रेशन से कुछ आपको लग रहा है कि he is feeling disturbed, कुछ वायलेंस इसने देखा, वहां डिस्टर्ब है, कुछ बुली हो रहा है, क्या हो रहा है, आप उसको जब देखेंगे ना और फिर इससे ऐसा ऐसा बात करेंगे ना, आपको बहुत अच्छी सारी नॉलेज मिलेगी और आपका एक पूरा क्लियर वे आउट आपको पता चलेगा इसके साथ कैसे मेरी आगे की पेरेंटिंग होनी चाहिए. शो इंटरेस्ट इन योर टीन स्कूल एंड एक्स्ट्रा करिकुलर इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज बहुत जरूरी. ये सारी चीजें बहुत जरूरी है. आप जब नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाएंगे हाई स्कूल, वहां और डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लेसन, उसका स्कूल वर्क, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, टाइमिंग्स, सब चीजों का ध्यान रखना है. और बहुत सारे पेरेंट्स अभी जिनके बच्चे छोटे हैं, they are already doing it with their younger ones, but most of the time when the child grows into this category, parents sometimes छोड़ देते हैं, कहते हैं कि खुद ही मैनेज कर लेगा. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. Encourage your teen to volunteer and become involved in civic activities in the community. कम्युनिटी रिलेटेड एक्टिविटीज में अगर टीम ज्यादा इन्वॉल्व होता है, वहां उसको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, क्योंकि ये टाइम है, ही इज एंजॉयिंग हिज इंडिपेंडेंस. enjoy when the child enjoys the independence, उसके पास अगर पॉजिटिव एक्टिविटीज है, वो उसका पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव डायमेंशन में उसकी एनर्जी जाती है. लेकिन अगर उसका जो है एनर्जी नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाती है, तो वो बिल्कुल रॉन्ग वे में चला जाता है. इसीलिए यूथ के टाइम पे यूथ कैंप्स होते हैं, एडोलेसेंट कैंप्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कैंप्स करा रहे होते हैं, या फिर पेरेंट्स खुद एक फोरम बना के बच्चों के लिए एक्टिविटीज खुद प्लान करते हैं, या फिर बच्चे को हम एज अ फैमिली कहीं पे एक्सकर्जन्स के लिए लेके जाते हैं. ये सारी एक्टिविटीज से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है. सो वॉलंटियरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड मेक श्योर दैट आवर चाइल्ड गेट्स इनटू इट. Compliment the teen and celebrate his efforts and accomplishments. जो छोटी छोटी भी वो एफर्ट करता है घर में, अगर हेल्प कर रहा है या कुछ काम कर रहा है या किसी की कोई अच्छा इसने एफर्ट किया अपने स्टडीज के अंदर, वहां उसके एफर्ट को कॉम्प्लीमेंट करना है, उसके एफर्ट को एनकरेज करना है, प्रेज करना है, विच इज गोइंग टू बी हेल्पफुल, एंड द चाइल्ड फील्स मोर एनकरेज्ड एंड देन द पॉजिटिव एक्शंस गेट रिपीटेड. Show affection for your teens. Spend time together doing things together and the things that you enjoy. If the child likes to play cricket, if the girl wants to go with you to a coffee house, then go, enjoy, sit, talk, and talk about school matters. क्या चल रहा है, कैसा है लाइफ में, ऐसे बर्निंग इश्यूज के बारे में भी बात करो. इसके बारे में तुम क्या सोचते हो, क्या क्या तुमको लगता है कैसा होना चाहिए. तो वहां पे बच्चा खुल के आपसे बात करता है, डिफरेंट एनवायरनमेंट में बात करता है. चाइल्ड लाइक्स टू प्ले समथिंग, प्ले विद द चाइल्ड. बाहर निकलो, एक उसके साथ आपके पास आउटडोर एक्टिविटीज भी हो जाएगी, स्पोर्ट्स भी हो जाएगा, और एक साथ बाहर साथ में टाइम स्पेंड करने से कम्युनिकेशन भी बिल्ड होगा. रिस्पेक्ट द चाइल्ड्स नीड्स फॉर प्राइवेसी. अभी वो इतना बड़ा अभी हो रहा है, sometimes children, the parents in this age are still, trying to invade in privacy of the children. Sometimes they are taking the phones, forcefully and checking कि क्या है दिखाओ. अभी थोड़ा थोड़ा उसको प्राइवेसी का एहसास होने दो, एंड हमें भी थोड़ा अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना है, रिस्ट्रेन करना है. इस तरह के पहले की तरह पेरेंटिंग अभी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा. वी हैव टू कंसिडर हिम एज अ ह्यूमन बीइंग. इतना ज्यादा डिफिकल्ट उसकी लाइफ नहीं बना देनी है कि उसको प्रॉब्लम्स हो. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. एनकरेज योर टीम टू डेवलप सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. अभी हमारे पास जितने घर में प्रॉब्लम्स होते हैं, समटाइम हम टीम्स को भी बिठाना चाहिए, बात करना चाहिए. आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, फैमिली का कोई इशू है, उसके किसी और फैमिली के अंदर कुछ इशू है, लेट्स सिट विद द चाइल्ड एंड टॉक कि ओके ये सिचुएशन है, व्हाट शुड बी द प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म. यू सी नाउ आइडिया जनरेशन कितना इंपॉर्टेंट है. वहां पे हम इसको सिखाते हैं कि व्हेन द problem in life comes, at that time you don't have to feel yourself sad और इतना ज्यादा अपने आप को वो नहीं कर लेना है, discouraged feel नहीं करना है. think of an idea. One idea will not work, the other idea will work. So plan A, plan B, plan C, plan D. So that is how a child understand that one idea may not work,
but he is not going to get scared of failure, and he is going to implement the second idea, keeping into consideration all the things that are important in life. So that is important. So far we have discussed 7 tips, and I'm sure you are noting them down. Now, 8th point: if your teen engages in interactive internet media such as games, chat rooms, and instant messaging, encourage her or him to make good decisions about what she or he posts and the amount of time she spends on the activities. Last time हमने स्क्रीन टाइम पे बहुत बात की थी, आज हम इसको इतना क्विकली डील करेंगे क्योंकि आज इसको हम गुड जजमेंट सिखा रहे हैं, इसको हम सिखा रहे हैं कि कितना अपने और कम्युनिकेशन के साथ चाइल्ड विल फील मोर एनकरेज, एंड उसको पता चलेगा कि आई हैव ऑल द अदर कमिटमेंट्स एंड इस कमिटमेंट को हमें इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है. Sometimes, because the brain is still in the process of development, as you have seen in the previous slide, child's judgment is somewhere down the line you will feel that the child is not making right judgment. Sometimes child sleeps very late at night, and then when the child is sleeping so late at night, what happens? He is all the time playing with the video game and everything. And these days जो गेम्स का कल्चर चल रहा है और उसकी वजह से जो सोशल प्रेशर क्रिएट होता है, people feel that game के अंदर it's not a virtual environment, it's a real environment. वो उसको reality समझता है. वहां पे हमें एज अ पेरेंट अपना रोल प्ले करना है कि it's different from the real life, it's a virtual life and here we are in the real life. डिफरेंस सिखाना है कि वर्चुअल एंड रियल लाइफ में क्या डिफरेंस है. जब वो रियल लाइफ को अंडरस्टैंड करता है तो वो लोगों के साथ सोशल स्किल्स डेवलप करता है और पेरेंट्स उसको हेल्प करते हैं. जब वो ऑल द टाइम वर्चुअल एनवायरनमेंट में होता है तो वो सोशल स्किल्स नहीं डेवलप कर सकता और वहां पे उसको बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं. इफ योर टीन वर्क्स, use the opportunity to talk about expectation, responsibility. अगर अभी sometimes कुछ teens western countries में तो बहुत सारे teens काम करना शुरू कर देते हैं इस एज में, ठीक है, तो वहां पे responsibility, expectation उसके बारे में भी बात करना चाहिए, ठीक है. बिहेविंग रिस्पेक्टफुली इन पब्लिक सेटिंग के बारे में भी बात करना चाहिए. अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करना ताकि हमारे इम्पल्स से दूसरा अफेक्ट ना हो, वहां उसके बारे में भी बात करना चाहिए. आपने मी टू की कैंपेन के बारे में तो सुना है और आपने पढ़ा भी है कितना ज्यादा वो कैंपेन की वजह से आज का टीन एक सेंसिबल टीन है, क्योंकि वो उसको पता है कि राइट्स ऑफ विमेन क्या है, उसको ये सारी चीजों के बारे में अब पता है, तो he is making a sensible decisions. And research is also proving that today's teen is making sensible decisions because is more aware. But mental health issue का अंदर last 10 years में research says कि 2005 से 2015 के अंदर और उसके बाद अभी 2020 तक mental health cases के अंदर teens का ग्राफ ज्यादा हाई होता जा रहा है. लेकिन सेंसिबल डिसीजन मेकिंग में काफी इंप्रूवमेंट आया बिकॉज ऑफ द सेंसिटिव थिंग्स दैट ही इज वाचिंग अराउंड हिम. ओके, सो ये सारी बातें हैं, जनरल पेरेंटिंग टिप्स हैं. एंड देन द लास्ट वन इज एनकरेज योर टीन टू गेट इनफ स्लीप एंड एक्सरसाइज एंड ईट हेल्दी एंड बैलेंस्ड मील. ये बहुत जरूरी है. हाई स्कूल लाइफ वेरी क्विकली हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पेरेंटिंग टिप्स हाई स्कूल के लिए क्या होने चाहिए. आप अब बिफोर आई मूव ऑन मैं आपको आधी मिनट 30 सेकेंड्स का पॉज देती हूँ. आप मुझे जरा सोच के बताइए कि आपकी अब तक क्या क्या पेरेंटिंग टिप्स थी जो आपका बच्चा मिडिल स्कूल में था या एलिमेंट्री शुरू में प्राइमरी स्कूल में था. आपकी क्या, कैसे आप अपने बच्चे के स्कूल के साथ इंटरेक्ट करते थे, जरा उसके बारे में सोचिए. गिव योरसेल्फ few seconds and then we move on so that you will be able to internalize it better. Your time starts now. 10 seconds. All right. So you have, I think, I'm sure you all have thought about what are the things that you do as a parent when your child is in the primary school and when the child is in the middle school. अब देखते हैं high school parents को क्या करना चाहिए. क्या आप तैयार हैं? Let's see. अटेंड पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस. कोई चेंज नहीं हुआ है, पहले भी करते थे अब भी करना है, इसीलिए मैंने आपको 10 सेकंड का पॉज दिया.
ये नहीं सोचना कि पेरेंटिंग टीन में डिफरेंट तरह की हो गई है और हमें जो है ना उनको स्कूल की लाइफ में हमें इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है. अटेंड पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस, पहले भी करते थे, अब भी करना है. विजिट द स्कूल एंड इट्स वेबसाइट, अब स्कूल विजिट करना भी है और साथ साथ विजिट करना है स्कूल का वेबसाइट. वेबसाइट जब विजिट करते हैं तो क्या देखना, वो अगली स्लाइड में देखेंगे. स्कूल के वेबसाइट में एज अ टीन पेरेंट आपको क्या क्या देखना चाहिए, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा टीन की स्कूल में क्या चल रहा है. हम नेक्स्ट स्लाइड में पूरी चेकलिस्ट है, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना, आप ले सकते हो. तो आप देखो, विजिट द स्कूल एंड द स्कूल्स वेबसाइट. नेक्स्ट पॉइंट, सपोर्ट होमवर्क एक्सपेक्टेशन. जो पहले आप करते थे अभी भी करना है, लेकिन डायरेक्ट साथ में बैठ के होमवर्क नहीं कराना है अनलेस द चाइल्ड टेल्स यू कि नो आई नीड हेल्प, प्लीज सिट विथ मी, हेल्प मी. then you will sit and help. Otherwise, make sure उसने खाना ठीक से खाया है, make sure उसके घर में enough ventilation है, light proper है, उसको लेसन करने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा, इसके रूम में नॉइज नहीं हो रहा. इस तरह से आप पूरी वो तरीके से पेरेंटिंग को सपोर्ट कर सकते हो. एंड द चाइल्ड टेल्स यू कि मुझे एकेडमिक्स में भी हेल्प चाहिए, देन यू कैन सिट विथ हिम. अगर समझ में नहीं आता तब भी बैठो, मोटिवेट करो और उसके साथ बैठो, उसको गाइड करो कि देखो रीड करो और समझ में आएगा. और नहीं आता तो आप उनको इनकरेज करो कि अपने कोलीग से बात करो, फ्रेंड से बात करो, देखो वो लोग कैसे कर रहे हैं. ठीक है. Send your teen to school ready to learn. Sometimes child is very sleepy, especially in the teenage. बहुत ज्यादा नींद में होता है और जब वो स्कूल जाता है तो ऑल द टाइम यॉन कर रहा होता है. टीन एज में नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है. आपको मैंने शुरू में कहा था 8 to 10 आवर्स की स्लीप इंपॉर्टेंट है. 8 to 10 आवर्स स्लीप इन टीन एज इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर बच्चे को ये टाइम पे आपने, अगर रूटीन सेट है, आपने टाइम टेबल बनाया है, एवरीबडी नोज द एक्सपेक्टेशन एंड लाइट्स आर ऑफ, यू नो, सारे घर की lights, when your lights are out and everybody is going to sleep, even the teen will go, because now it's a culture that you have built. So when the child goes to school, उसने खाना ठीक से खाया है, इसका नाश्ता अच्छे से हुआ है, आपने उसको अच्छी तरह से प्रॉपर बैलेंस मील दिया है, that is important. इंस्टिल ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, यहाँ पे उसको ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बहुत काम आएंगी क्योंकि अब उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, होमवर्क एंड एक्सपेक्टेशंस एंड एवरीथिंग ही हैज टू मैनेज. सो नाउ इफ ही नोज के कितना टाइम किसको देना, यहाँ अगेन आपको मैं कहती हूँ जो मैंने आपसे प्री टीन में बात की थी, routine is important and then help with organizational skills. जो उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोटी छोटी देते हैं ताकि उसको पता चलता है कि ये चीजें लाइफ में इंपॉर्टेंट है और वहां उसको काम आता है. इस पे हम बात कर चुके हैं. ऑफर हेल्प वाइल स्टडिंग के अंदर आप उसको ऑफर कर सकते हो, बट डोंट फोर्स कि आई विल सिट विथ यू व्हाइल यू आर स्टडिंग, शो मी द लेसन and show me, let me sit with you. Only if the child tells you that I need your help, then you offer this type of support. Know the disciplinary and bullying policies पता होना चाहिए कि स्कूल में अगर बुली कर रहा है कोई उसको, तो बुली के लिए स्कूल ने क्या पॉलिसीज सेट की है. क्या आपको ये बातें पता है, और नहीं पता तो आप स्कूल जाए और जाके आप फाइंड आउट करो कि व्हाट इज द डिसिप्लिनरी पॉलिसी. इफ माय चाइल्ड गेट्स इनटू अ डिसिप्लिनरी एक्शन, उसके उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. या अगर कोई उसको बुली कर रहा है या मेरा बच्चा किसी को बुली कर रहा है, तो मैं व्हाट आर द थिंग्स दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड, पॉलिसीज क्या है स्कूल की. गेट इन्वॉल्व होना जरूरी, स्कूल लाइफ में इन्वॉल्व होना जरूरी है. स्कूल के अंदर भी पेरेंट्स का एसोसिएशन होता है. बहुत सारे स्कूल्स में पेरेंट्स की एक टीम होती है, एसोसिएशन होता है. समटाइम्स पेरेंट्स खुद स्कूल के लिए प्रोग्राम्स करा रहे होते हैं या फंड कलेक्ट कर रहे होते हैं या कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, वहां पर आपको जाना चाहिए. समटाइम कॉफी मॉर्निंग्स होती है स्कूल में, उन स्कूल कॉफी मॉर्निंग्स में जाके बात करना चाहिए कि ये इशू है, और अगर कुछ अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं तो आपको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, सुनना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टेक अटेंडेंस सीरियसली. समटाइम्स ये होता है कि क्लास होती है या नहीं होती, चाइल्ड टेल्स यू समथिंग एंड द रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट, बट मेक श्योर दैट चाइल्ड अटेंड्स द स्कूल. It's important. Make sure the child has slept well the whole night properly, has eaten properly, so that when he goes to school, he has all the, you know, energy to work and study there well. Okay. Make time to talk about school. घर आने के बाद meal time का best utilize होना चाहिए. Meal time पे बातें होती है. Meal time पे बैठ के discuss करना चाहिए कि आज का दिन कैसा गया, क्या किया, कैसा रहा, कहाँ पे help चाहिए.
और मतलब फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट होता है ना, तो बच्चा दिल खोल के बात करता है. अगर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ एक पेरेंट रहता है कि आई एम द बॉस एंड आई एम द अथॉरिटी एंड चाइल्ड हैज टू फॉलो व्हाटएवर आई टेल द चाइल्ड, that is not right. That is authoritarian parenting, which is not right. The right type of parenting is authoritative parenting, and as the child goes into this phase in the teen life, यहाँ पे उसके साथ friendly रहना है while being authoritative. ठीक है. अब हम देखते हैं चेकलिस्ट. मैंने आपसे कहा था कि स्कूल के वेबसाइट को चेक करने के लिए क्या चेकलिस्ट है, क्या क्या चीजें आपको चेक करनी चाहिए. स्कूल के वेबसाइट के अंदर क्या होता है, क्या देखना चाहिए. पहले तो देखो स्कूल का कैलेंडर, कौन सी एक्टिविटीज है, कौन से दिन कोई प्रोग्राम है. स्कूल कैलेंडर में सारी चीजें दे हैव नोटेड इट डाउन. So you don't even have to go personally to the school, although you are going there, but by just following the website, आपको ये सब पता चल रहा है. कैलेंडर पता है. Contacting school staff, ये भी आपको, अगर स्कूल का स्टाफ का ईमेल आईडीज वहां पे है, अगर आपको लगता है यहाँ पे बच्चा कंसर्न है, स्कूल काउंसलर से आपको एक ईमेल ड्रॉप कर दो, या अगर आपका स्कूल बच्चे का कोई मेंटर है उसको एक ईमेल ड्रॉप कर दिया, क्लास टीचर को एक ईमेल ड्रॉप कर दिया, make an appointment that I want to see the child's teacher, then they are going to tell you, okay, this is the best time, please come, and then you go and talk. So it's a triangle, parent, teacher and the child. You know, you have to make sure that you maintain this triangle. It's going to be helpful. Then the third thing that in the checklist, special events like dance and class trips, इसमें भी बच्चा पार्टिसिपेट करे. उसका ट्रांसपोर्टेशन का क्या अरेंजमेंट है. अगर आपने किसी फ्रेंड की मदर के साथ ये डिस्कस किया है कि मैं छोड़ने तुम जाओ, लेने मैं जाऊं, कोऑर्डिनेशन रखना है. ऐसा नहीं कि कोई को पता नहीं है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, एंड देन चाइल्ड इज वल्नरेबल. एट द एंड ऑफ द डे अब देख रहा है कि कोई पेरेंट नहीं है, एंड देन ही इज टेकिंग अ पब्लिक बस एंड कमिंग बैक फ्रॉम दैट वेन्यू जो जहाँ पे इसकी क्लास की ट्रिप थी, और वहां से, और फिर उसको रास्ते में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है. अगर वो पब्लिक बस भी यूज कर रहा है, एंड इफ द चाइल्ड इज बीइंग इंडिपेंडेंट, उसके भी रूल्स पता होना चाहिए, उसको भी सिस्टम्स पता होना चाहिए, सो दैट child doesn't get into a trouble or a problem. That's what I told you. This is a turbulent time, so let's be an alert pilot. Okay. टेस्टिंग डेट्स, स्कूल की टेस्ट कौन से दिन पे, एग्जाम कौन से दिन, फर्स्ट टर्म कब कंप्लीट हुआ, सेकंड टर्म कब कंप्लीट हुआ, मिड टर्म ब्रेक के डेज क्या है, होमवर्क असाइनमेंट्स तो कुछ नहीं मिला, प्रोजेक्ट तो कुछ नहीं है, प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है तुम्हारे बच्चे के साथ, सारी चीजों का लिस्ट होता है. अगर आपके स्कूल के अंदर ऐसा कोई वेबसाइट है तो वो सारी चीजें वो लोग वहां आपको शेयर करेंगे, और अगर नहीं करते तो आपको लीफलेट्स एंड सर्कुलर्स के थ्रू भी ये सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है. करंट ग्रेड्स एंड मिसिंग असाइनमेंट, जो भी अगर मिसिंग असाइनमेंट है या क्या करंट ग्रेड है, ये सारी बातें भी पेरेंट को पता होनी चाहिए. साइन अप इंफॉर्मेशन, स्केड्यूल्स फॉर स्पोर्ट्स, क्लब एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, किसमें बच्चे को इंटरेस्ट है, कौन सी बच्चे ने एक्टिविटी ली है, और टाइमिंग्स क्या है. एंड फिर अगर टाइमिंग पता है तो देन आपका पिक एंड ड्रॉप का टाइमिंग भी चेंज होगा बेस्ड ऑन द टाइमिंग्स ऑफ द स्कूल एंड द करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी. According to everything, then you know, a day before or 2 days before or even a week before, you just make sure that the child you inform or you share with the child that this whole week these are the activities that are coming up, and then what are the things that you need to prepare, you need to keep ready so that you can participate fully. Student resource for life after high school, so ये सारे चीजें आपको स्कूल वेबसाइट में मिलेगी. तो मेक श्योर करना है. आज मैंने आपसे पहले जो बातें की, इसके पहले आप देखो ये सारे 10 पॉइंट्स थे, उसमें पूरी हाई स्कूल की टिप्स थी. लेकिन जो पॉइंट नंबर 2 है इस लिस्ट में, विजिट द स्कूल एंड इट्स वेबसाइट, उसको मैंने यहाँ और इलेबोरेट किया. इसमें और पॉइंट्स आपको बताएं कि वेबसाइट के अंदर आपको क्या चेक करना है. अब देखते हैं और इम्पोर्टेंट एरिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी इमेज एंड सेल्फ एस्टीम. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एरिया है. बॉडी इमेज क्या होता है? योर बॉडी इमेज इज हाउ एंड व्हाट यू थिंक एंड फील अबाउट योर बॉडी. It includes picture of your body that you have in your mind which might or might not match your expectations, or you know, तो ये सारी बात अगर आपको ऐसा लगता है कि which might or might not match your body's actual shape and size. Okay, so
आप देखते हैं कि अगर बच्चे को बॉडी इमेज इश्यूज हो रहे हैं और ये अपने आप को लो फील कर रहा है, अब वो जब लो फील करेगा तो उसकी पूरी लाइफ इम्पैक्ट होती है, उसकी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होती है, उसका अटेंडेंस इम्पैक्ट होता है, उसका ओवरऑल उसकी लाइफ में, एकेडमिक लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स आते हैं. अ पॉजिटिव हेल्दी बॉडी इमेज इज अ फीलिंग ऑफ हैप्पी एंड बीइंग सेटिस्फाइड. अगर हेल्दी बॉडी इमेज है तो अच्छा लगता है उसको, अगर उसके माइंड में अनहेल्दी बॉडी इमेज है तो वो ऑल द टाइम सैड एंड डिप्रेस फील करता है. समटाइम्स दे मेक रोल मॉडल्स कि मुझे ऐसा बनना है, या वो मीडिया में देखता है और उसकी वजह से वो अपने आप को सैड फील करने लगता है, अनहैप्पी फील करने लगता है. यहाँ पेरेंट्स को क्या करना वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि a healthy body image is important. When you feel good about your body, you are more likely to have good self-esteem and mental health, as well as balanced attitude to eating and physical activity. ये parent का काम है कि no matter what, तुम जैसे हो मुझे पसंद है, तुम मेरे लिए, तुम, this is the good way, this is the good body image. आप अपने आप को भी आप देखो ना कि sometimes we are criticizing a lot. एक्सरसाइज करना और हेल्दी डाइट लेना इंपॉर्टेंट है फॉर गुड हेल्थ. लेकिन इफ चाइल्ड इज डूइंग एक्सेसिव एक्सरसाइज एंड वो खाना नहीं खा रहा, उसके इश्यूज हो रहे हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, एनोरेक्सिया और बुलिमिया, इसमें ये तो खाना खाना बंद कर देता है, या फिर क्या करता है, खाना खाने के बाद वो किसी तरह से जल्दी खाने को निकाल दे वॉमिट करके. इससे कितनी ज्यादा तकलीफ होती है, आपको पता है कितने ज्यादा खराब इश्यूज हैं ये हेल्थ के लिए, कितने ज्यादा इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं बच्चे की लाइफ में. तो ये सारी चीजें होती है जब उसके दिमाग में बॉडी इमेज का एक भूत सवार हो जाता है कि मुझे ऐसा पतला होना है, या मुझे ऐसा दिखना है, या मुझे 6 पैक्स चाहिए, एंड देन उसका पूरा अटेंशन उसी में चला जाता है. ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि वो पीयर प्रेशर से अफेक्ट हो रहा है, वो दुनिया में देख रहा है, मीडिया उसको क्या दिखा रहा है, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, घर में किस किस्म की बातें होती हैं. सब चीज हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन कम्युनिकेशन के थ्रू हम इसको बता सकते हैं कि तुम जैसे हो ठीक हो, एक्सरसाइज करना अच्छा है, हेल्दी रहने के लिए अच्छा है. लेकिन अगर उसको दिमाग पे सवार कर लिया कि नहीं मुझे 3 से 4 घंटा जिम में इसलिए जाना है कि मैं 6 पैक्स में लेके आऊं, दैट इज नॉट राइट. उससे उसकी पूरी लाइफ इम्पैक्ट हो रही है. तो ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए. अब मैं आपसे कुछ रिसर्च शेयर करती हूँ. बॉडी इमेज के हवाले से कुछ रिसर्च आप देखें. ये बीबीसी में एक रिपोर्ट आई थी. एक चाइल्ड क्या शेयर करता है, देखो पढ़े इसकी क्या लिखा. इट्स काइंड ऑफ वांटिंग पीपल टू लाइक यू बट इट्स समटाइम्स क्वाइट हार्ड टू डू दैट. छोटे से छोटे बच्चे को ऐसा फील आने लगता है कि दिस इज व्हाट इज द ओनली लाइफ, ऐसा ही होना चाहिए. जब ऐसा सोचने लगता है तो फिर क्या होता है, उसका पूरा अटेंशन उसमें चला जाता है, इसका सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है. अब आप देखें ये एक और रिसर्च है. Some secondary school pupils are considering extreme diet and cosmetic surgery. मैंने आपसे अभी 2 ईटिंग डिसऑर्डर्स की बात की. कुछ लोग कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ चले जाते हैं, जबकि ये दे आर जस्ट इन सेकेंडरी स्कूल. आप सोचें ऑल द टाइम अटेंशन रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगा तो फिर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चीजें कैसे कंप्लीट करेगा. और आप नेक्स्ट पॉइंट देखें, एक और रिसर्च आप देखें कि इसमें क्या लिखा है कि Children as young as 11 are suffering with body image anxiety. 11 साल का हुआ अभी तो अभी से उसको body image के problems शुरू हो रहे हैं. And this is all, people have studied this matter for a very, very long time, and it has an impact, a very bad impact, a very sad impact on the childhood. So that's why as parents, we have to understand and take it very seriously. How we will do it? We are discussing it in the next slide. But first, understand the concept of body image and how it impacts the child in this age group. In a survey of 11 to 16 years old, 52% regularly worry about how they look. आप सोचो 100% स्टूडेंट पॉपुलेशन में से 52% ऑल द टाइम अगर इसी चीज की वरी कर रहे हैं कि मैं कैसा दिखता हूं, तो उसका ध्यान बाकी चीजों में कैसे जाएगा. और हमारा कंज्यूमरिज्म का एक कॉन्सेप्ट है, मीडिया में चल रहा है, कपड़े ये लो, जैकेट ऐसे लो, शूज ऐसा होना चाहिए, ज्वेलरी ऐसा होना चाहिए.
वो सब चीजें बच्चा देख रहा है, और कौन दिखा रहा है? पेरेंट। टीवी ऑन है ऑल द टाइम। जब टीवी सारा दिन ऑन होता है और फिर सोशल मीडिया में सारी ये अगर बच्चे को पता चले ना कि आजकल एडिटिंग वेबसाइट्स में किस तरह से जो है ना एक इमेज को एडिट करके प्रेजेंट किया जाता है, ये जो रोल मॉडल्स होते हैं, फिल्म स्टार्स होते हैं, ये कोई इमेजेस उनके एज इट इज नहीं आते, वो सब एडिट करके फोटोशॉप के थ्रू वो इमेजेस को डिस्प्ले किया जाता है। और बच्चे के माइंड में ये कॉन्सेप्ट है कि दिस इज द आइडियल बॉडी फिगर, आइडियल बॉडी साइज, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है, दिस इज एन ऑप्शन, अ चॉइस। Remember 2 episodes ago I told you, what they do is their choice, what you do is your choice. Every choice has a repercussion. अगर हमारा बच्चा ऐसा कर रहा है तो उसका repercussion ये है कि वो बाकी तमाम चीजों से उसका ध्यान हट गया। एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, अगर आप कार में कहीं जा रहे हैं और बारिश आ रही है, राइट, ड्रिजलिंग हो रही है, आपका जो विंड स्क्रीन है वहां पे ड्रॉप्स है पानी के। अगर आपका ध्यान उस ड्रॉप पे होगा ना तो आगे का आपको नजर नहीं आएगा, रास्ता कहाँ जाना है वो धुंधला हो जाएगा, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन क्या है? उस पानी के ड्रॉप पे। अगर आपका ध्यान आगे के रास्ते पे तो पानी के ड्रॉप धुंधले हो जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट वेयर वी पुट आवर फोकस इनटू। एंड एज अ पेरेंट वी हैव टू टेल आवर चाइल्ड कि अपना फोकस यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है। कैसे? रोल मॉडल के थ्रू अपने आप की मॉडलिंग करनी है। हमें बताना है कि देखो हमको ये चीज अफेक्ट नहीं करती, क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में ये है। अच्छे पॉजिटिव रोल मॉडल्स आप दिखाएं। देखो 52% इट्स अ कितना हाई फिगर है ये। अगर वो ऑल द टाइम अपने बॉडी इमेज के बारे में या कैसा दिखता हूँ उस पर फिक्र कर रहा है, ये बच्चा जो 11 to 16 का है, अभी इसके सामने इसका पूरा करियर बाकी है। अब देखें एक और रिसर्च। In the survey of 11 to 16 years old, would you, okay, 36%, okay, in the survey of 11 to 16 year old would do whatever it takes 36% to look good. 36% इसमें से ऐसे लोग हैं जो गुड, अच्छा दिखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पेरेंट्स की कंडीशन कैसी भी हो, मुझे ब्रांडेड कपड़े ही चाहिए, मुझे ऐसी ही तरीके की लाइफस्टाइल चाहिए, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे? क्योंकि हमारा सेल्फ एस्टीम लो है। एंड वहां पर एक सबने देखा देखी, सबने, किसी को पता नहीं रियल डायरेक्शन क्या है। सबने एक बस टीवी में, मीडिया में, कंज्यूमरिज्म का हमारा कल्चर, एडवर्टीजमेंट्स में, वहां से देख लिया कि ये रियल है। आज कितनी सारी कैंपेन्स चल रही है ब्यूटी रीडिफाइंड के कॉन्सेप्ट को लेके। ब्यूटी रीडिफाइंड, पहले एक स्टीरियोटिपिकल पिक्चर थी ब्यूटी किसे कहते हैं, कि ऐसा ही होना चाहिए ब्यूटी का मतलब। आज इट इज टोटली अ पैराडाइम शिफ्ट। कहा जाता है कि एवरीबडी इज ब्यूटीफुल। जॉर्ज फ्लॉयड के केस के बाद हमें कितनी सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है दुनिया में, कि कितनी सारी चीजें चेंज हुई है, कितनी आंखें खुली है लोगों की। इसी तरह से ब्यूटी रीडिफाइंड का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, ठीक है, और कितनी सारी और चीजें भी आ रही हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि people are now getting more and more sensitive towards these things, and we as a parent, as the authority in the household, we have to ensure that our children are understanding these things properly. अभी हमें कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए कि घर में अगर कुछ ऐसी बातें कर रहा है, वो बैठे हुए डिस्कशन चल रहा है, खाना खाते खाते बैठे हुए, तो ये तमाम चीजें अगर बच्चा बोल रहा है, मीन्स हमें उसको ध्यान से सुनना है। हमें इट्स अ रेड लाइट, रेड सिग्नल है ये, कि इसका दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रही है। उस वक्त फौरन इंटरवेन करना है। देखो ये पॉइंट्स याद रखो, क्योंकि काम आएंगे बहुत। अगर बच्चा क्रिटिसाइज कर रहा है अपनी खुद की बॉडी को, कि ही माइट से ही इज अगली, दूसरे लोग ज्यादा अच्छे दिखते हैं, मैं अच्छा नहीं दिखती हूँ या अच्छा नहीं दिखता हूँ, या कंपेयर कर रहा है, मैं पतला, ये मोटा, ये मोटी, ये मैं व्हाटएवर, अपने आप को कंपेयर कर रहा है दूसरों की बॉडी से। Not wanting to leave the house because of the way he looks. घर से बाहर इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं ऐसा दिखता हूँ या दिखती हूँ। तो ये बातें अगर हो रही है घर के अंदर, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम पे हमें एक्शन लेना है। Not doing activities or trying new things because of the way he feels about his body. सारी उसकी एनर्जी चली गई, पोटेंशियल खत्म, एकेडमिक में से, लाइफ में से इसका ध्यान चला गया। क्यों? बिकॉज दिमाग पे एक
वरी आ गई, ऐसे जीना है, ये स्टैंडर्ड है। अरे भाई, अगर तुम्हारे बच्चे के अंदर ये थॉट आ जाता है तो क्या आप उसको रखोगे संभाल के, उस थॉट को प्रिजर्व करोगे? पेरेंट के तौर पे अपना रोल प्ले नहीं करोगे कि वो थॉट को वॉश आउट करोगे ना, कम्युनिकेशन करोगे ना, कि छोड़ दोगे ये सोच के कि टीन एज है, चलो चलता है, जो भी कर रहा है करने दो, क्योंकि हमारा अब कंट्रोल नहीं रहा? इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट राइट। Obsessing about losing weight or about specific parts of his body like face or legs, कि मेरा मुंह ऐसा, मेरा बॉडी ऐसा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा या मोटी हो जाऊंगी। ये चीजें अगर हो रही है तो बैठ के बात करो, बाहर ले जाओ, बैठ के बात करो, स्पोर्ट्स में ले जाओ, वहां बातें करो। Spending lot of time looking into the mirror and taking photos and looking for changes and imperfections, मेरा फेस ऐसा, मेरा बॉडी ऐसा, मुझे ऐसा नहीं दिखना चाहिए, मेरे फ्रेंड्स ऐसे नहीं दिखते, मैं खराब दिखती हूँ या दिखता हूँ, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। और अगर आप कहो कि चलो आंटी के घर जाने चाहो, तैयार हो, कबर्ड के पास जाएगा तो एक 15 कपड़े बेड पे बिखरे हुए पड़े, कबर्ड में से एक निकालेगा, ट्राई करेगा, नहीं मोटा दिख रहा, मोटी दिख रही, चेंज करो, दूसरा पहनो। एंड देन 1-1.5-2 घंटे तक वो इसी तरह चल रहा होता है, क्योंकि उसके माइंड में ऐसा है कि मेरा इमेज अच्छा नहीं दिखेगा। एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा? आप 15-50 कपड़े उसके बेड पे होंगे और उसने वही ब्लैक पहन लिया होगा। ब्लैक क्यों? क्योंकि ब्लैक में मेरा बॉडी पतला दिखेगा। हर घर की कहानी है, आपको रिलेट कर सकते हो इन तमाम चीजों से। तो ये चीजें अगर होती है तो आपको जानना चाहिए कि क्या करना चाहिए एज अ पेरेंट। लिंकिंग फूड विथ फीलिंग्स ऑफ गिल्ट, शेम एंड ब्लेम। कहीं कुछ खा लिया, डिनर में आपने कुछ इसका फेवरेट बनाया, 2 बाइट खाया, नहीं खा रहा है, क्यों? ज्यादा खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा या मोटी हो जाऊंगी। यहाँ पे आपको दिखाना है कि हेल्दी लाइफस्टाइल किसे कहते हैं, हेल्दी ईटिंग पैटर्न किसे कहते हैं। और अब देखते हैं क्या करना, क्या करना। इशू तो हम समझ गए, अब देखते हैं कि पॉजिटिव पेरेंटिंग टिप्स क्या है बॉडी इमेज के हवाले से। पहली बात, टॉकिंग एंड लिसनिंग। सिट एंड टॉक, लुक एट द मदर एंड द चाइल्ड, दे आर सिटिंग एंड टॉकिंग इन द गार्डन। आराम से बाहर बैठ के टाइम स्पेंड करना है। वरना अगर वो इस इशू के साथ बड़ा होता है ना, अगर आपने उसको वॉश आउट नहीं किया, आपके घर के अंदर एक कॉर्नर में डस्ट है, डर्ट है या स्पाइडर वेब्स है, आपने उसको क्लीन नहीं किया 1 महीने तक, 2 महीने तक, 10 साल तक, जब बच्चा 13 का था ऑल द वे टू 20, 7 साल तक वो डस्ट एंड गर्दो गुबार उधर ही पड़ा है, आपने उसको क्लीन नहीं किया। तो आप घर में भी तो क्लीनिंग करते हो ना हर कॉर्नर को, तो ये इसके ब्रेन में आ गया है तो उसको साफ करना है एज अ पेरेंट। दूसरा पॉइंट, फोकस ऑन योर चाइल्ड एज अ होल पर्सन। उसकी पूरी पर्सनालिटी को इन टोटलिटी देखो, कौन से गुड पॉइंट्स है, कौन से अच्छे पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स को हमें हाईलाइट करना है एज अ पेरेंट। So child feels good about his body, he feels good about his behavior, he feels good about his attitude, he feels good about his character, he feels good about the helping nature, he feels good about the empathy that he carries for others. That's very important. All right, the next third point, be a positive body image role model. Exercise करना है as a mother, as a father, 30 minutes brisk walking या 1 hour walking. Child has noticed you that you are maintaining a healthy routine. Just because you don't want to go into obesity and you don't want to go into diabetes and hypertension when you are reaching your midlife. So child is observing that this, because of the health reason, my parents are having a healthy routine. So ये important है, आपने एक उसको role modeling किया. But when the child is getting into that, when the child is so obsessed about making going to the gym and 6 packs and ये और सारी, girl अगर है तो all the time अपने आप को adorn कर रही है. देखिए, मैं कुछ दिनों पहले एक TED Talk सुन रही थी and it was very interesting. जब बॉडी इमेज की बात आई ना, तो वो जो पर्सन, द प्रेजेंटर ऑफ द टेड टॉक, शी गेव मी 3 इंटरेस्टिंग पॉइंट्स. फर्स्ट थिंग वाज हाइड इट. जब इंसान को जब लगता है दुनिया सारी ये कर रही है और मैं ऐसा नहीं हूं या मैं उसमें फिट नहीं बैठ रहा हूं, तो अपने आप को छुपा लो. पहला स्टेज, हाइड इट. हाइड इट.
हाइड इट का मतलब पार्टिसिपेट नहीं करो। क्या ये प्रोडक्टिव है? नहीं है। अब उसके बाद उसको बहुत साल बाद इस ऑथर को, इस प्रेजेंटर को रियलाइज हुआ, बिकॉज शी वाज वेरी गुड एट स्विमिंग एंड शी स्टॉप्ड स्विमिंग जस्ट बिकॉज शी वाज नॉट फिट physically, she thought, and that's why she thought that no, I don't want to go into I don't want to carry on with my passion. Second point was fix it. Sometimes I am just giving you this example. बहुत सारे examples के अंदर body image hamper करता है बच्चों की potential को पूरी तरह से explore करने में। तो फिर क्या होता है कि अगर हाइड इट का एक पहला स्टेज है, अपने आप को छुपा लो, कहीं बाहर नहीं जाओ, बाद में रियलाइज होता है कि नहीं चलो कब तक बाहर नहीं जाऊंगा, चलो फिक्स इट, जो हो सकता है करो, उसके लिए क्रैश डाइट, और उसकी वजह से ईटिंग डिसऑर्डर में आ जाते हैं, और इसकी वजह से वो अपने 7 आवर्स जिम में डालते हैं और बाकी चीजें अफेक्ट हो रही है, फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर अब डिप्रेशन एंड मेंटल इश्यूज में। एंड देन द थर्ड थिंग राइज हो रहा है ना, देखो अवेयरनेस राइज हो रही है। दिस प्रेजेंटर ही वाज वेरी वेरी इसकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी रीजनेबल। उसने कहा पहला स्टेज होता है हाइड इट, दूसरा स्टेज होता है फिक्स इट, तीसरा स्टेज होती है राइज इट, राइज फ्रॉम इट, उठ जाओ। ऐसा है तो क्या हुआ, दुनिया तो नहीं एंड हो गई। हु सेज दैट ऐसा ही होना चाहिए? ठीक है, अब वहां पे वो एक्सप्लोर करते, समटाइम्स एथलीट्स होते हैं, समटाइम्स फुटबॉलर्स होते हैं, समटाइम्स क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं, वो भागते नहीं है ज्यादा तेज बैट के बैटिंग करने के बाद। क्यों? मैं जरा बहुत ज्यादा चबी हूँ, मैं मोटा हूँ या मोटी हूँ, मैं भागूंगी तो स्पेक्टेटर्स ऑडियम ये जो हमारे बैठे हैं स्टेडियम में वो लोग सब हंसेंगे, मीडिया कैमराज मेरी तरफ है, वो सब हंसेंगे। सो ये बॉडी इमेज की वजह से उसका स्पोर्ट्स टैलेंट पूरा चला जाता है, करियर चला जाता है। ऐसे में माँ बाप को बताना चाहिए कि डू योर बेस्ट। हाइड इट का स्टेज गया, फिक्स इट का स्टेज गया, राइज, उभरो, ऊपर उठो। ऐसा नहीं सोचो कि दिस इज द स्टैंडर्ड, यू हैव टू have a healthy lifestyle, that's very important, but not because you have to improve your body image. Okay? अब देखो घर में कैसी बातें होती हैं जो हमें नहीं करनी, घर में जो बातें होती है वो हमें नहीं करनी। डोंट क्रिटिक योर ओन बॉडी इन फ्रंट ऑफ योर टीन्स। बच्चों के सामने अपने खुद की बॉडी को क्रिटिक नहीं करना है। डोंट एसोसिएट हेल्थ विथ वेट लॉस एंड वेट गेन। वेट गेन और वेट लॉस का मतलब हेल्दी रहना नहीं। हेल्थ का मतलब नहीं कि बहुत ज्यादा चबी है तो तुम हेल्दी नहीं हो, ये चीजें नहीं करना है। इम्प्रूव करना है हमारे घर के अंदर हमारे बातचीत को। डोंट कॉम्प्लीमेंट योर टीन्स ऑन द फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस को देख के खाली तारीफ नहीं करना, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, या आज तुमने बहुत अच्छा ड्रेस पहना है, तुम अच्छे दिखते हो। डोंट कंपेयर योर टीन्स टू अदर टीन्स। दूसरे टीन्स के देख के अपने बच्चे को कंपेयर नहीं करना है। जो है वो तुम्हारा बच्चा है, उसको ही ध्यान दो और उसी के लिए अपने स्टैंडर्ड्स साथ बैठ के सेट करो, जहां पे उसकी पूरी पोटेंशियल और एनर्जी को वो यूटिलाइज कर सके। डोंट अज्यूम टीन बॉयज डोंट केयर अबाउट बॉडी इमेज। टीन बॉयज समटाइम्स लगता है कि उनको बॉडी इमेज की पड़ी नहीं है, सिर्फ गर्ल्स को ज्यादा फिक्र है। हर एक को इम्पैक्ट करता है बॉडी इमेज, हर एक को, और उसकी वजह से परफॉर्मेंस पे अफेक्ट होता है। Don't ignore the fact how social media may affect your teen's body image. Social media में बच्चा क्या देखता है वो बैठ के डिस्कस करना चाहिए, बात करना चाहिए। और अगर आपको लगता है बॉडी इमेज आपके बच्चे के माइंड को हैम्पर कर रहा है तो उससे बैठ के डिस्कस करना है। Don't talk about how perfect and gorgeous celebrities are. Film stars इतना अच्छे, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना अच्छा इनका बॉडी फिगर। ऐसा नहीं, आपको पता है ये सब झूठ है, ये सब it's not real. फोटोशॉप यूज करते हैं तो वहां पे वो लोग अपने पिक्चर्स को एडिट करते हैं, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। सो हमेशा ये वाली बातों को आपको बच्चों के साथ डिस्कस करना है। एंड बी सेंसिटिव अबाउट द यूज ऑफ आवर लैंग्वेज। हमारी लैंग्वेज हम कैसे यूज करते हैं उसके बारे में हमें ध्यान रखना है। सोशल प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई विल नॉट डिस्कस इट टुडे बिकॉज टाइम हमारा अब खत्म हो गया है आज के प्रेजेंटेशन का। आज जो हमारे साथ पेरेंट्स बैठे हैं ना, आई विल रिक्वेस्ट देम कि आप हमारे साथ नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में जब हम यंग एडल्ट्स की बात करेंगे,
वहां पे इन टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे, सोशल प्रेशर को भी डिस्कस करेंगे, मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि 2 सेक्शंस हमारे आज हमने डिस्कस नहीं किए जो मैंने आपसे शुरू में शेयर किया था. लेट मी टेक यू बैक टू दैट स्लाइड, व्हाट the contents of today's webinar, and you will see that these are the 2 areas that we have not discussed. Okay, देखिए ये वाला point. In the fourth and the fifth one we are not discussing today because we don't have time. Okay, so it was nice meeting you again today online. If there are any questions, please, I'm here to take your questions, and we are going to discuss the 4th and the 5th section next week. So please join again, and there will be lots of interesting things next week as well. Thank you very much, everybody. God bless you.